See the mommy won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. So I will just start. I was told by the President Saab that there has already been 2 lectures on the red jurisdiction, and you already know about the history of the red jurisdiction. My lecture, I have tried to focus on the actual language of Article 199 and to make sure that I come before you with the interpretation of the words which are used in Article 199, which are very important. Now, before starting, there is one thing which I was told by my father once. I drafted a writ petition, I went to him, and in the prayer clause, I had written that this order passed by the courts below be set aside. हमारा नॉर्मली ये सेट असाइड का जो वर्ड है ये हम लोग यूज कर देते हैं अपनी प्लीडिंग्स के अंदर. तो he told me that go and read Article 199, and when I read Article 199 there wasn't any word set aside written in the Constitution in itself in Article 199. The one thing he told me, and that is very important, that before you start drafting you must see the language of the law itself. And it becomes easy that you use the words which are actually referred in the law, which are written in the Constitution. For instance, अब Article 199 को आप देखेंगे तो इसमें जो टॉपिक मुझे मिला है, लेट्स फॉर एग्जांपल सेशोरारी है, तो अब उसमें आर्टिकल 199A2 में आप देखेंगे तो वर्ड्स है डिक्लेयर करें उस एक्ट को या प्रोसीडिंग्स को has been done or taken without lawful authority. So when you are drafting, you must go and see the Constitution and the law, and it becomes very easy, just reproduce those words in the petition. उससे होगा क्या कि ultimately when you are standing in front of the judge, you know that you have got these words from the law in itself, so you can never be wrong. So though the words you are using in your petition are deriving from the law in itself. So this is the first thing I would like to mention here, that whenever you are drafting, use the words which are used in the Act or the Constitution. It makes life easy for all of us. Secondly, while talking about writ jurisdiction, if you would see, I have a couple of handouts which I have given to you. Article 199 contains 5 sub-articles. Now this is the second important point, that we need to understand the sub-articles of Article 199. And when you go through Article 199, you will see that all the writ petitions or the jurisdiction vested in the High Court, or what he can do while he is exercising his jurisdiction under Article 199 is listed in Article 1. So Article 2, 3, 4 and 5 does not talk about the jurisdiction they can exercise. कहने का मेरा मकसद ये है कि जो आपका Article 99(1) है, 1 जो है, उसके अंदर ही जो आपकी 5 रिट्स हैं, वो पांचों की पांचों उनके अंदर ही मेंशन है, सब आर्टिकल 1 के अंदर. 2, 3, 4, 5 में वो डिफरेंट चीज से डील करती है कि फिर आगे आपने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किस तरह करनी है, बट द रिट्स आर मेंशन्ड इन सब आर्टिकल 1. अब जो वर्दी प्रेसिडेंट कह रहे थे कि फोकसिंग ऑन द ड्राफ्टिंग, वी हैव आल्सो सीन दैट व्हेनेवर वी फाइल अ रिट पिटीशन, वी file a writ petition by stating that it's a writ petition under Article 199 of the Constitution. Now, why we do this? We do this because we are not sure ourselves that sub-article 1 further then has 3 clauses. Clause A, Clause B and Clause C. So whenever you are filing a constitutional petition, you have to bring your case within the ambit of those 3 sub-clauses, which is subclause A, subclause B and subclause C. So if you mention, for instance, if you are filing a writ petition and if you mention Article 199(1),
sub-article 1 and then the clause, it gives an impression to the judge that you actually know under what jurisdiction you are coming to the judge and what you are seeking. So I'll just say that make sure that when you are going to a judge, you know that under what sub-article or clause you are actually going and getting that relief. Now I'll start off with Article 199, and sub-article 1 contains few words which are very important. Article 199 starts with the word subject to the Constitution, a High Court may, and then there is a comma. So before going to a judge in constitutional jurisdiction, you have to first think what are the hurdles I have to cross before the judge can exercise its constitutional jurisdiction. So the first hurdle which is mentioned in Article 199 in itself is subject to the Constitution. Now these three words, subject to the Constitution, are very important for the reason that the constitutional framers have given the powers to the High Court to exercise their power under the constitutional jurisdiction. But then that power has also been subjected to the other articles of the Constitution. It is not an unlimited power which can be exercised by the Honorable High Courts. While exercising that jurisdiction, they have to keep in their mind, even the petitioner has to keep in their mind, is there any other article in the Constitution which talks about the subject I am taking in a red jurisdiction? And very common article which comes in the hurdle when you come to Article 199, and this is related to service law, that for instance if you come to High Court directly with regards to the terms and conditions of a civil servant, now there is an article in the Constitution, Article 212 of the Constitution, which sets out that there could be established tribunals who are then going to exercise powers with respect to the terms and condition of service. अब अगर आप Article 199 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि you can come to the High Court. But then when you read Article 212 with it, then you will come to the conclusion, no, there is another Article 212 which vests the jurisdiction in some other body. Alternate remedy and subject to the Constitution, both have to be read together. Then I was going through another provision of the Constitution. There is Article 97, which is power of the executive. Because I wanted to see what are the other articles which also have this provision subject to the Constitution. Even the federation, your federal government's power in Article 97 have been made subject to the Constitution. So what I noticed was that all the three pillars or all the pillars of the state were given certain powers, but then at the same time their powers was claused, or there was an embargo put on their powers by bringing it subject to the Constitution. तो पुराने ज़माने में when they जो आप लोगों ने सुना भी जिस तरह for instance it was the king who actually used to do everything. He was the executive, he was the judiciary, so therefore when he was exercising his power, he had unlimited power. It was not subject to the Constitution as it is. So this is the first hurdle that you have to cross, that is subject to the Constitution. And then there are a couple of judgments which I have just mentioned. For instance, 2015 SCMR 1739, PLD 2017 Lahore 665, which talks about this subject to the Constitution. What does it mean? So you can just go through it and see the elaborative part of the subject to the Constitution. The second thing, if you would notice in Article 199, is the subject to the Constitution, a High Court may. Then another word which is used in the Constitution is the word may. The constitutional framers have not used the word shall. So for instance, if the High Court comes to the conclusion that there is some wrong, they still have the discretion which is left by the Constitution in their hands. Otherwise, if it was shall,
then the person bringing the constitutional petition could have said to the judge that this is my right, and if I have proved whatever I have come before you, that you have to grant this writ petition, constitutional petition. If there was a word shall, then the High Court would actually have to do it. So there is an element of discretion left in the High Court by using this word may. Now coming to the concept how this word may has been used by the High Court. For instance, there is you all know relating the concept of leges. Now there is no limitation prescribed in the Article 199 for you to come and challenge an act before the High Court. There is no provision in the Constitution or the Limitation Act which provides a certain period of time in which you have to come to the High Court. अब वो कहीं पे provided नहीं थी. So what the High Court did through precedent, यही discretionary वाली जो उनके पास power थी word may को, उसको use करते हुए they introduced the concept of laches in the writ jurisdiction. अब हो सकता है कि अगर कोई भी हमारा नया यंगस्टर है who is going through Article 199 comes up to you and asks you कि जी यहाँ पे तो laches का word use ही नहीं हुआ तो ये Article 199 how could you read into a constitution something which is not written in the constitution. तो उसमें laches का थोड़ा सा concept, इमरान भी इधर बैठे हुए have gone through the concept of laches, जो मुझे थोड़ा सा लगता है I might be wrong. At the end, if someone knows it, we can talk about it. Laches concept was introduced in the Commonwealth and US court jurisdiction with respect to interim injunctions. कि अगर आप अपना right लेने आ रहे हो under the law, they cannot refuse you that right, but what they can do is they can refuse you injunction on the ground. For instance, अगर आपके साथ कोई बंदा building बना रहा है और आप 6 months तक नहीं कोई action करते हो, तो what the courts do in US is that they say that because you have come late to the court, we are not going to grant injunction. But at the end of the day, if you are able to convince the judge कि मेरा case on merit बनता है, तो he is going to grant you the relief. On the other hand, हमारी courts के अंदर this laches concept is being used to dismiss the writ petition. But normally this laches concept is only linked to the interlocutory matters or interim injunctions of it. This is something which could be developed probably, but has not been developed in Pakistan as such. Now the third point which you need to see while interpreting Article 199 is, and this is very important, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. So the third thing which the judge would see is, and if he is satisfied that there is no adequate remedy. And now here the tricky part is that the word adequate has been written in the Constitution. Otherwise constitutional framers could have just used word remedy. So if there was any other remedy, you could not have come under Article 199, right? So what they have done is they have again left some kind of discretion with the judges that if they feel that there is a remedy provided by law, but at the same time it is not adequate given the circumstances of the case, they can come to the rescue of the petitioner and say, no doubt there is a remedy in the law, but because it is not adequate, and then there is another word which is used with it, which is called efficacious. This is also built up by the precedent that we have. Efficacious means that, for instance, if I am sending someone to another tribunal or, for example, an authority, and if that authority under the law cannot grant the relief which is immediately needed by that person, then although there is a remedy, the court still would exercise the jurisdiction under Article 199, but it is still within the discretionary domain of the honorable judges of the High Court. But what we as lawyers could do is that if there is an alternate remedy, we have to somehow bring our case within the ambit that is not adequate. Adequate in the sense that it does not fulfill my purpose. अब इसमें कुछ जजमेंट्स ऐसे भी हैं, लेट फॉर एग्जांपल अगर आपको सिविल कोर्ट भेज दिया जाता है कुछ रेमेडीज में, तो देयर हैव बीन जजमेंट्स वेयर द कोर्ट्स हैव कम टू द कंक्लूजन दैट इट टेक्स सो मच टाइम in the trial. For instance, it takes 10 to 15 years, and by the time
after 15 years, if something has to be done which is patently illegal, which on the face of it they can see is without jurisdiction, and by sending a person to the court will take another 15 years for him to get to the same point which they can grant a relief now. तो वो उस सर्कमस्टेंसेस में जहां उनको लगता है, जिसपे फिर जजमेंट्स भी हैं कि पेटेंटली इलीगल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, तो दे कैन कम टू द एड ऑफ द पिटिशनर. अब आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 की जो आगे तीनों क्लॉजेज हैं, जो मैंने आपको पहले वाली बात बताई है, ये तो सब ही सब क्लॉजेज में एप्लीकेबल है. क्लॉज ए हो, क्लॉज बी हो या क्लॉज सी हो. नाउ देयर इज अनदर डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट इज दैट जो आपकी क्लॉज ए है उसके भी 2 रोमन पॉइंट्स हैं आगे क्लॉज ए के. क्लॉज बी के भी 2 रोमन पॉइंट्स है. क्लॉज सी का कोई पॉइंट नहीं. क्लॉज सी इज इन इटसेल्फ, देयर इज नो रोमन 1 2 इन क्लॉज सी. अब क्लॉज ए के जो रोमन 1 एंड 2 हैं, रोमन 1 के अंदर आपका डील होता है मैंडमस एंड प्रोहिबिशन. So for instance, if you are coming for a direction to an authority that, for instance, your application is pending somewhere and that application is not being decided, so you come to the High Court and you come under Article 199 sub Article 1 Clause A Roman 1. तो अगर आप ये मेंशन करेंगे ऊपर तो जज को समझ आएगी कि जो मैं पहले बात कर रहा था उससे लिंक कर सकते हैं. और जो क्लॉज ए का सब आर्टिकल 2 है, दैट इज सेशोरारी. एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज वेरी थिन. द बेसिक डिफरेंस इज कि जो क्लॉज रोमन 1 में आप आ रहे हैं वो तब आ रहे हैं जब एक एक्ट हुआ नहीं है एंड यू आर कमिंग टू द कोर्ट एंड यू वांट टू स्टॉप दैट एक्ट. सो आप बेसिकली यू आर कमिंग एंड यू आर सेइंग प्रोहिबिटिंग अ पर्सन दैट ही शुडंट डू समथिंग व्हिच इज नॉट, ही कैन नॉट डू अंडर द लॉ. Or you actually coming to the court and saying he order him to do something which is required by law to do. जो सेशोरारी में वहां पे ये कि एक्ट हो गया, एक्ट एंड प्रोसीडिंग हैज बीन डन बाय डिपार्टमेंट्स, बाय द कोर्ट्स. That act has been done and you are coming to the court stating that this act has been done. Kindly declare this. अब दोनों में क्या फर्क है? वहां पे डायरेक्शन है, यहां पे डिक्लेरेशन है. ठीक है, वहां पे है कि डायरेक्ट देम टू डू दिस एक्ट, डायरेक्ट दैट ही कैन नॉट डू दिस. यहां पे है कि वट एवर ही हैज डन डिक्लेयर इट दैट इट इज अनलॉफुल एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी. तो आपने जो अपनी प्रेयर है उसके अंदर भी यू हैव टू मेंशन इन मैंडमस एंड प्रोहिबिशन डायरेक्टिंग देम टू डू समथिंग. इन सेशोरारी यू हैव टू मेंशन डिक्लेयर दैट दिस बी डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल अथॉरिटी, जो इसकी लैंग्वेज है. अच्छा, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये ज्यादातर के अंदर है, वो है विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. अनदर हर्डल कम्स अप व्हिच इज मेंशन्ड इन रोमन 1 ऑफ सब क्लॉज ए. अब ये चीज आपने देखनी है कि जिस बंदे के अगेंस्ट आप रिट एनफोर्स करने आ रहे हैं वो पर्सन है. बेसिकली उस पर्सन, आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट डज द वर्ड पर्सन मीन्स, बट यू हैव टू सी वेदर that person falls within the territorial jurisdiction of the court in itself. Ab territorial jurisdiction of the court, obviously if we are talking about Lahore High Court, so Lahore High Court ki territorial jurisdiction is the complete province of the Punjab that we are talking about. There are a couple of cases in which the courts have come to the conclusion that if we pass this writ petition, if we accept this writ petition and pass an appropriate writ, this will have an effect on the other provinces as well. For instance, I'll give you an example of a case, PLD 2017 Lahore 665. Now this was the case of the quota in the CSS, and there was a person who came and he said that the quota in Punjab should be this much amount and not there should be this number of seats and not this number of seats. So the court did not exercise their jurisdiction for the reason because they had to disturb the quota of the other provinces also. तो जहां पे उनको ये लगेगा कि कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसका इम्पैक्ट जो है ओवर आर्चिंग है, बाकी प्रोविंसेस को भी वो इम्पैक्ट कर सकता है, then the court is not going to exercise its constitutional jurisdiction. अब जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचेस.
अब लाहौर हाई कोर्ट के जो आगे बेंचेस हैं हमारे, पिंडी बेंच हो गया, मुल्तान बेंच, एंड देन देयर इज भावलपुर बेंच, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचेस रूल्स 1981, and they were established by the provisional order in the year 1981. Under those rules, then each bench has got its own territorial jurisdiction. इसका हम थोड़ा सा उस तरह से अपने लिए रूल्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, बट अब हम अपने लिए ये रख सकते हैं कि पिंडी की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है दैट स्टेम्स फ्रॉम जेलम टू अटक, जो हमारी वो बार एसोसिएशन की भी जो जुरिस्डिक्शन है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे अंडर हैं. So if you are coming to Lahore High Court Rawalpindi bench and if you are seeking a direction against someone who is in, for example, Gujranwala or Sialkot or Faisalabad, the Lahore High Court Rawalpindi bench is not going to exercise the territorial jurisdiction for the reason there are Lahore High Court benches, establishment of benches rules. Every bench has got its own territorial jurisdiction. And the Honorable Chief Justice has the power that it can transfer one case from one bench to another bench. That is provided in the rules. In that circumstances, obviously, then they are able to pass that direction or pass a writ in appropriate cases. अब ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर बात होगी. अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जिस बंदे को आप डायरेक्शन दे रहे हो, पहली तो ये चीज देखनी है ना कि वो हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है या नहीं. सेकेंड चीज ये देखनी है कि क्या वो फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी. तो ये तीन चीजें फिर आगे हमने देखनी है कि जिस बंदे के खिलाफ या जिस पर्सन के खिलाफ या जिस बॉडी के खिलाफ या जिस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या जिस कंपनी के खिलाफ हम आ रहे हैं, जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या फंक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, प्रोविंस एंड लोकल अथॉरिटी. अब फंक्शंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप ये देखेंगे, मैं इसको जरा जल्दी से स्किप कर जाऊंगा बट दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो फेडरेशन है दैट इज डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 1, 2 एंड 3 और आर्टिकल है 41 से 100 के बीच में. ठीक है, तो अगर आप 41 से 100 के बीच में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फेडरेशन के क्या क्या काम है या फेडरेशन में क्या क्या चीज एग्जिस्ट शामिल होती है. तो आप 41 और 100 की चीजों को भी पढ़ के ला सकते हैं कि जी ये 41 से 100 में ये चीज इस तरह से होनी थी, ये नहीं हुई है, देयरफॉर या जो बॉडीज बनी हुई हैं वो बॉडीज बेसिकली फेडरेशन का पार्ट है. तो इसलिए इन बॉडीज के अगेंस्ट में आ सकता हूं बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन. तो फेडरेशन को पूरा एलेबोरेट किया हुआ है कि व्हाट डज फेडरेशन मीन इन आर्टिकल 41 से लेके आर्टिकल 100 तक. सिमिलरली प्रोविंस को भी किया हुआ है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 101 टू आर्टिकल 140. और फिर मैंने यहां देखा था लोकल अथॉरिटी लिखा था, और लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था हमारे. 18th अमेंडमेंट में फिर लोकल अथॉरिटी का भी एक आर्टिकल 140A इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और प्रॉब्ली फिर आर्टिकल 199 को अगर आप मिला के पढ़ो तो इट मेक सेंस, बिकॉज in order to understand what federation is, what province is and what local authority is, you need to understand these all chapters of the constitution which I have referred, because in isolation you would not be able to understand what the word federation in fact means. This in itself is a complete topic on which someone can give a lecture on. Coming to my, because I was told by the President साहब के prohibition और उसके ऊपर mandamus में तो होगी, I'll just skip it. I'll come to certiorari. Certiorari is contained in Roman 2 of clause A of sub article 1. और इसमें जो सबसे important दो words हैं वो हैं act done और proceedings taken. और फिर within the territorial jurisdiction of the court by person performing function in connection with the affairs of federation or province or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. अब इसमें there is a contrast different between the two words act done and proceedings taken. Act would be a single
singular act that would be done. So it will be just, for instance, if you are coming against an order of a lower court to the Honorable High Court, then you are actually challenging that order or that act which has been done. अब इसकी एग्जाम्पल मैं दूंगा, साहब ज्यादा इसको करेंगे. फॉर इंस्टेंस हमारे, आपको याद होगा, देयर इज अ वेरी फेमस केस ऑफ असफंजार वली केस, जिसमें ये नैब के जब लॉज आए थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स डिड नॉट हैव द पावर टू ग्रांट बेल टू एनीवन. So then that matter went up to the Honorable Supreme Court, and then Article 199 की jurisdiction exercise करते हुए उन्होंने कहा कि you can grant bail. But what actually they do is they declare the act of arrest as illegal. Bail में बड़ा different है. What they do is in the writ jurisdiction वो declare करते हैं उस act को. वो कहते हैं ये act जो था आपका arrest करने का वो without lawful authority था. So basically वो Article 199 सेशोरारी के अंदर से ही what they have come up with a solution that this act of arrest is basically without lawful authority, and obviously principles तो bail के ही सारे apply होते हैं. But कहने का मकसद ये है कि act के ऊपर, act को आप इस तरह से समझ ले जो मुझे समझ आई है कि act is something which is one singular thing which has happened, and that act in itself was unlawful. Proceedings on the other hand is something which is elaborative in nature. प्रोसीडिंग्स का मतलब यह है कि जो स्टार्ट से लेके आपने एंड तक, जब तक उस एक्ट के ऊपर आप पहुंचते नहीं है, जो जो स्टेप्स आपने ली हैं, दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स. तो यू कैन एक्चुअली कम इनटू सेशोरारी एंड से कि ये प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं, ये प्रोसीडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं. लेट्स फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ ये कहता है कि यू हैव टू पास अ सर्टेन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days, ठीक है, नॉट द ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड, राइट? So this is something, the proceedings have not been done in accordance with the law, in accordance what was mandated by the law, that it should be done in that particular way. तो अगर कोई चीज एक्ट के मुताबिक नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उसका तरीकेकार वज़ा किया गया उसके मुताबिक नहीं हो रही है, तो आप उस तरीकेकार के ऊपर भी आ सकते हैं. अब ये जो हमारा ऑडी ऑल्टरम पार्टम का है या नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये बेसिकली उस प्रोसीडिंग्स का ही हिस्सा है कि उन प्रोसीडिंग्स के अंदर I was not given an opportunity of hearing. I was not called. An order was passed at my back without giving an opportunity of hearing. Although it's not written in Article 199. But वो लेके इसी के अंदर लाया जाता है कि लॉ में ये प्रिज्यूम किया गया है, या there is by General Clause Act there is a provision in the law that nobody should be condemned unheard. ठीक है? तो प्रोसीडिंग्स की जो है उसके ऊपर आपने प्रोसीडिंग में ये भी है, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट के अगेंस्ट, सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर देता हूं, और ये वो ड्राफ्टिंग के हवाले से ही कि मैंने खुद भी एक दो दफा ये ऐसी गलती की हुई है कि हम जब फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट आ रहे होते हैं तो हम बना ही लेते हैं उन्हें पार्टी के, डिस्ट्रिक्ट डीसीओ को बना लिया, आईजी को बना लिया, हमें पता होता है कि हम इनके अगेंस्ट आ रहे हैं. मैंने काफी दफा देखा, और ये मुझसे भी कभी कभार ड्राफ्टिंग के अंदर गलती हो जाती है. अब मैं अपने दिमाग के अंदर एक नोट रखता हूं कि व्हेन आई एम कमिंग अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन वी आल्सो हैव टू मेक द जज, नॉट द जजेस, द कोर्ट्स इन इटसेल्फ एज पार्टीज. फॉर एग्जांपल जब आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के अगेंस्ट आ रहे हैं, सिविल जज के अगेंस्ट आ रहे हैं, रेंट ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन द authority, don't mention the name of the judge, you just have to mention for instance the family court or the district judge. अब काफी दफा मैंने ये देखा कि हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो भूल ही जाते हैं, इधर कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में, क्योंकि हमें होता है पार्टीज वही बनानी जिनके दरमियान केस चल रहा है ना. बट टेक्निकली यू आर कमिंग इन सेशोरारी, so you are coming there and saying that the court which passed the order has passed it without lawful authority. तो आप टेक्निकली उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट या उसकी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट भी आ सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स के अंदर फॉर इंस्टेंस उसने एक एप्लीकेशन आपने दे दी है, लेट फॉर एग्जांपल सेटिंग असाइड एक्स पार्टी की, वो जज डिसाइड ही नहीं कर रहा, जज वो छोड़ के किसी और आगे केस को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो आप आ जाते हैं, आप कहते हैं जो प्रोसीडिंग्स इन्होंने की है, टू फर्स्ट डिसाइड माय एप्लीकेशंस. तो जो प्रोसीडिंग्स है ना सारी, यू कैन आल्सो क्वेश्चन दोस प्रोसीडिंग्स, द वे एंड द मैनर द जज इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, द वे ही इज एक्चुअली टेकिंग द केस अलोंग. और उसमें काफी लोगों के होते भी हैं
खदशात भी होते हैं, जल्दी हो रहा है, कोई कभी कहता है डिले हो रहा है, डिले के ऊपर भी आप आ सकते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं टाइम काफी ज्यादा। तो ये एक पॉइंट है जो काफी ज्यादा हम लोग मिस कर देते हैं, बट इसमें पार्टी बनाना बहुत जरूरी है। एंड इनवेरिएबली एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखेंगे कि जो हमारे स्पेशल लॉज है ना, स्पेशल लॉज में बिकॉज देयर इज रेमेडी ऑफ अपील प्रोवाइडेड बट देयर इज नो रेमेडी ऑफ रिवीजन प्रोवाइडेड इन द स्पेशल लॉज। फैमिली कोर्ट में आप देख लें, आप रेंट में देख लें, तो उसमें काफी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग इन रिवीजन पिटीशन एंड व्हाई वी आर गोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल। आपने देखा होगा ना, रेंट में भी इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ हम रेट में आते हैं, फैमिली में भी इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ हम रेट में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उन लॉज के अंदर ही इन इटसेल्फ लिखा होता है कि सीपीसी इज नॉट एप्लीकेबल most of the special laws. So what then we can do is that because the CPC is not applicable, revision is not provided. So therefore the only remedy we are left with is to come to the High Court in constitutional jurisdiction. इधर काफी जजमेंट्स हाई कोर्ट की भी आई हुई है इस पॉइंट के ऊपर कि जब स्पेशल लॉ ने अगेंस्ट एन इंटरम ऑर्डर अपील नहीं प्रोवाइड की, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील प्रोवाइड किया, तो when you come into writ jurisdiction, you are actually taking away the mandate that was provided by the legislature, क्योंकि उनके माइंड में तो यही था कि जब फाइनल ऑर्डर होगा उस वक्त आप अपील में जाइएगा, तो आप इंटरम ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्यों आ रहे हैं? अब उस टाइम पे भी इंटरम ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप आ सकते हैं, बट यू विल हैव टू शो दैट इट इज विदाउट जुरिस्डिक्शन। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी का केस इस्लामाबाद में फाइल होना था और उसने केस फाइल कर दिया आपके खिलाफ पिंडी में, तो obviously then you can file an application, and if that application is not decided or decided, either way you can come to the High Court stating that this is without jurisdiction. उन केसेस में आप हाई कोर्ट आ सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ योर राइट्स, क्योंकि उसमें आप आ रहे हैं कि जी विदाउट जुरिस्डिक्शन है। पर हाँ, जैसा फैमिली कोर्ट में हम इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं नॉर्मली कि जी ये इतने पैसे बनते थे, इतने कर दिए, इंटरम मेंटेनेंस, ये वो, ये थोड़ा सा फार फेस्ट हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये आना पड़ता है हमें भी, आई अंडरस्टैंड, बट देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ऑब्वियसली स्टैंड बिफोर द जज एंड जस्ट स्टैंड देयर एंड से कि जी कर दें, प्लीज मेहरबानी करके कर दें। मतलब उसमें देयर हैज टू बी सम लॉ स्टेटिंग कि जी ये विदाउट जुरिस्डिक्शन है या ये कर नहीं सकते अंडर द लॉ, तो वो बहुत जरूरी है जो आपने लाजमी देखना है। तो सेशोरारी के अंदर बेसिकली रहता लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि सेशोरारी is for when you are challenging the orders of the subordinate court. सेशोरारी बाकी एग्जेक्टिव के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका कोई एक्ट आप चैलेंज कर रहे हो तो इवन देन सेशोरारी इज एप्लीकेबल। इट इज नॉट ओनली द कोर्ट्स, विच मैं भी यही समझता था बेसिकली, जब मैंने लेक्चर के लिए दोबारा सही तरह से पढ़ा भी आर्टिकल 199। अब इसका जो अब अगला ये तो सेशोरारी हो गया कि क्लॉज ए के अंदर बेसिकली सेशोरारी आपकी आ रही है। अच्छा, अब अगर आप क्लॉज बी देखेंगे तो क्लॉज बी के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो देयर इज अ वेरी सडन डिफरेंस ऑफ अप्रोच बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। अब सब क्लॉज ए के अंदर आप देखेंगे वर्ड यूज हुआ हुआ है एग्रीव पार्टी, सब क्लॉज बी के अंदर वर्ड यूज हुआ हुआ है एनी पर्सन, और सब क्लॉज सी के अंदर यूज हुआ हुआ है एनी एग्रीव पर्सन। यानी कि पहले में यूज हुआ हुआ है एग्रीव पार्टी, बी में यूज हुआ हुआ है एनी पर्सन, और थर्ड में हुआ हुआ है एग्रीव्ड पर्सन सी में। अब फर्क क्या है? जो क्लॉज ए में आप आ रहे हैं मैंडेमस और सेशोरारी के लिए, वो आपको एग्रीव्ड पार्टी होना जरूरी है। अब यहां पे वर्ड है पार्टी। पार्टी मींस हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दोस प्रोसीडिंग्स। कि फॉर इंस्टेंस, अब अगर मैं एक प्रोसीडिंग्स का पार्ट ही नहीं हूं तो आई कैन नॉट कम इन सेशोरारी, आई कैन नॉट कम इन मैंडेमस, आई कैन नॉट कम इन प्रोहिबिशन। वो मैं आगे चल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बताता हूं कि वो किस तरह आ जाते हैं। यहां पे टेक्निकली ये है बात कि एग्रीव पार्टी का कॉन्सेप्ट है। एग्रीव पार्टी के ऊपर आपने प्रोसीडिंग्स का पार्ट होना जरूरी है। क्लॉज बी है, क्लॉज बी के अंदर आपकी दो तरह की आ रही हैं रिट पिटीशंस। पहली तो आपकी आ रही है जी हेबियस कॉर्पस, वो आ रही है आपकी रोमन 1 ऑफ आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1B, उसका रोमन 1 है, और रोमन 2 जो है आपकी वो कोवरंटो को डील कर रहा है।
तो बी के अंदर आपकी दो चीजें आ रही हैं, हेबियस कॉर्पस एंड को वारंटो। ए के अंदर 3 रेट्स थी, बी के अंदर 2 रेट्स हैं। इस तरह से आप लोग इसको याद रख लें, ठीक है। अब हेबियस कॉर्पस के अंदर जो मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात लगी, मैं थोड़ा सा जल्दी भी चलूंगा। हेबियस कॉर्पस में एज यू ऑल नो, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हेबियस कॉर्पस में वो हैं directing that a person in custody within the territorial jurisdiction of the court be brought before it so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner। अब इसमें मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था अनलॉफुल मैनर, क्योंकि मैं हमेशा से ये समझता था हेबियस कॉर्पस में कि if someone is detained without lawful authority then you can come into habeas corpus, but if he is being done if it is in unlawful manner ये हो सकता है कि if you are in the jail and there is certain requirements which are to be met आपको रखने के लिए, और वो नहीं मीट हो रही है, the basic ingredient या आपके साथ वहां पे कोई ज्यादती हो रही है, आपको वो जो मैनर अंडर द पुलिस रूल या जेल मैनुअल जो आपको प्रोवाइड होनी चाहिए चीजें, अगर वो नहीं हो रही है तो इवन देन यू कैन कम इन हेबियस कॉर्पस। फॉर एग्जांपल कि आपको जिस तरह डेथ सेल के अंदर डाला हुआ है, आपको नहीं डालना चाहिए था, या आपके साथ कोई और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट था अनलॉफुल मैनर इन विच अ पर्सन इज हेल्ड इन कस्टडी। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऑल लुक इनटू। Another aspect which hit me while going through habeas corpus was the law of preventive detention। अब ये लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आप खाली आर्टिकल 199 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक बंदे को कस्टडी के अंदर इन्होंने रख लिया, उसके ऊपर कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, तो उसको क्यों कस्टडी में रख दिया। तो आर्टिकल 199 के साथ हेबियस कॉर्पस में यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 4 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाया जा सकता है, जो कि हमारा भी बना हुआ है, जिसको हम एमपीओ कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में जिस तरह लोगों को आप अरेस्ट कर लेते हो कि जी आपको खतरा होता है ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर करेंगे। अब उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस अभी आया, आई वुड लाइक यू ऑल टू रीड थ्रू दैट, एंड दैट इज पीएलडी 2022 लाहौर पेज 61 हाफिज साद हुसैन रिजवी केस। अब आर्टिकल 10(4) में ना फिर पीरियड भी बताया हुआ है कि 90 डेज से ज्यादा की आपकी डिटेंशन नहीं हो सकती है। अगर होगी 90 डेज से ज्यादा की, फिर एक रिव्यू बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि उस रिव्यू बोर्ड अगर कहता है कि जरूरी, और रिव्यू बोर्ड में मेरे ख्याल हाई कोर्ट जजेस ही रिटायर्ड, जिनको रिव्यू बोर्ड में डाला, अगर वो कहते हैं तो कर सकते हैं। अब इस केस में 90 डेज की डिटेंशन हो चुकी थी, और उसके बाद टेररिज्म एक्ट के अंदर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन को, टेररिज्म एक्ट में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। अगर एज इट इज मैं आर्टिकल 199 देखूं, फंडामेंटल राइट्स देखूं, तो आई नेवर न्यू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज एन एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसको एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर दिया ना, वरना तो लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन मेरे ख्याल चैलेंज हो जाता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कि आप किसी को भी बिफोर एन एक्ट इज डन यू एक्चुअली टेकिंग अवे हिज कस्टडी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी रेड। अच्छा, इसके बाद हेबियस कॉर्पस से आगे मैं निकल के आता हूं को वारंटो के अंदर। अब को वारंटो के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, वो है हेबियस कॉर्पस में भी और को वारंटो में कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन इन फैक्ट विच इज लेड बिफोर द कोर्ट। सो एनी पर्सन हु इज नॉट इवन अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग या उसका रिलेटेड नहीं भी है, तो को वारंटो में और हेबियस कॉर्पस में कोई भी आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली हेबियस कॉर्पस में बंदा कस्टडी में होता है, तो देयर इज समवन एल्स हु इज गोइंग टू कम एंड फाइल अ पिटीशन ऑन हिज बिहाफ। इसी तरह को वारंटो में भी आपने लेके जाना है कोर्ट के सामने की जो पब्लिक ऑफिस होल्डर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक ऑफिस जो होल्ड कर रहा है बंदा, वो पब्लिक ऑफिस अंडर व्हाट अथॉरिटी लॉ ही इज होल्डिंग दैट। सो यू कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ पीपल। जो को वारंटो के अंदर नॉर्मली ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट्स चैलेंज कर सकते हैं। कोई बंदा किसी अथॉरिटी के अंदर अपॉइंट हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, उसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, कोई आपकी जो एक आपका प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का वो ठीक नहीं था, तो टेक्निकली यू कैन ब्रिंग इट अंडर द को वारंटो।
अच्छा, जो सी है, सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी के अंदर ना, on an application of any aggrieved person make an order giving such direction to any person or authority including any government exercising any power or performing any function in or relation to any territory within the jurisdiction of that court as may be for the enforcement of any fundamental rights. अब fundamental rights के लिए there is a complete different clause altogether, article 199 sub article 1c. But sometimes we have seen that this article A and C overlaps. But जो मुझे थोड़ी समझ आई है, and I might be wrong, but जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि A और B में आ रहे हैं आप लॉ की। लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर दे माइट बी थिंकिंग कि लॉ वुड मीन दैट अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट you are coming to the court for enforcement of some of your rights. But when you are coming for enforcement of your fundamental rights, then it is under article 199 1c. हम मैंडेमस में शायद चले जाएंगे कि जी ये मेरा राइट टू लाइफ है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सी में यहाँ पे भी अग्रीव पार्टी नहीं है, यहाँ पे वर्ड है अग्रीव पर्सन, बट यहाँ पे वर्ड पर्सन है कि कोई भी आ सकता है, बट ये थोड़ी सी क्लॉज लगा दी कि अग्रीव उसको भी होना चाहिए। एग्रीड इस तरह से आप इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे ख्याल से ज्यादातर फॉल्स विद इन आर्टिकल 199 1c, और उसको फिर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हो कि हाउ इट इज अफेक्टिंग माय, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल लॉस के अंदर अगर गवर्नमेंट फंक्शनरीज कोई काम नहीं ठीक कर रही तो इट इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग माय फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका रावल लेक में पानी साफ नहीं है तो अल्टीमेटली बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग दैट वाटर, इट इज योर फंडामेंटल राइट टू लाइफ दैट यू शुड हैव क्लीन वाटर, तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स इनडायरेक्टली आप इन्फोर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे भी उन्होंने वर्ड पर्सन तो यूज के साथ में एग्रीव कर दिया थोड़ा सा ये करने के लिए। अब ये नहीं होता कि पिंडी का बंदा तो रावल लेक पे जा रहा था, अब कराची का बंदा रावल लेक की सफाई के लिए अगर आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई ठीक है आप पर्सन तो बट उस तरह से टेक्निकली एग्रीव्ड नहीं हो। एंड इस चीज को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के माइंड में था कि जो हमारी इनडायरेक्ट लिटिगेशन होती है ना, कि वी हैव एक्चुअली लॉस्ट अ लिटिगेशन 1-to-1 जो हमारी चल रही है, तो वी पुट अप समवन एल्स और उसकी तरफ से हमने एक लिटिगेशन स्टार्ट करा दी। तो इनडायरेक्ट लिटिगेशन को भी थोड़ा सा रोकने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है, वरना वो इनडायरेक्ट लिटिगेशन में वो काम करा ले रहे और डायरेक्ट में नहीं उसको मिला हुआ या वो हारा हुआ। अच्छा, अब आर्टिकल 2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2, अब मैं आर्टिकल 199 में रेट्स होगी, मैं 2, 3, 4, 5 को थोड़ा जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल तो हम रेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रेट्स हैं। तो समराइज में वही है कि आपकी फॉर द यंगस्टर्स प्रोहिबिशन है, यू वांट टू प्रोहिबिट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग। मैंडेमस आ गई कि यू वांट टू गो एंड से कि ये करें, यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। सेशोरारी है कि एक्ट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एक्ट और प्रोसीडिंग्स है। हेबियस कॉर्पस है दैट द पर्सन इज डिटेन्ड अनलॉफुली, और उसके बाद आपकी को वारंटो है कि द पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस इज नॉट होल्डिंग इट, या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल तो लिखा हुआ है कि जी BA डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस जो है उसकी वो पूरी नहीं है। अच्छा, अब आर्टिकल 2 में है जी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू मूव टू अ हाई कोर्ट फॉर द enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 of the part 2 shall not be abridged. An order shall not be made under clause 1, ये 2 है। अब 2 उन्होंने ये डाला है कि सबऑर्डिनेट लॉ में आप कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते जिसकी वजह से मेरा राइट आप कर्टेल कर दें टू कम टू हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स वर ऑफ द व्यू के लेजिस्लेचर एक सर्टेन लॉस के अंदर कोई ऐसी चीजें डाल दे जिसकी वजह से उसकी रेमेडी जो है बंदे की आने की रुक जाए। तो उन्होंने कहा कि आप लॉज जितने मर्जी भी बना ले, वो लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं टेक अवे कर सकेंगे। तो ये आर्टिकल 199(2) कहता है। अब मैं आर्टिकल 199(4) पे आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब पढ़ रहा था तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे हुआ कि यार इसके ऊपर थोड़ा सा करना चाहिए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के, जब हम रिट पिटिशन में आते हैं इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड है, जो स्टे हम लेने आते हैं आर्टिकल 199 के अंदर, सब आर्टिकल 4 इंटरिम इंजंक्शन में कोर्ट के ऊपर भी कुछ कदगन लगाता है कि इंटरिम इंजंक्शन आपके सूरत हाल में नहीं दे सकते हाई कोर्ट।
an application where an application is made to High Court for an order under paragraph A और paragraph C of clause 1, अब इसमें B नहीं है, ठीक है, B में शायद इंटरम इंजंक्शन उस तरह, यानी कि B में इंटरम इंजंक्शन और कॉन्सेप्ट को वारंटो में आप आए हैं तो देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरम इंजंक्शन कि उस बंदे को काम करने से रोक दे, ठीक है। A और C में इधर लिखा हुआ है clause 1, and the making of an interim order would have the effect of prejudicing or interfering with the carrying out of a public work. अब अगर आप कोई ऐसी रेट लेके आए हैं जो कि इंटरफेयर कर रही है पब्लिक वर्क के अंदर और इंटरफेयरिंग और ऑफ अदरवाइज बीइंग हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट, आप एक ऐसी रेट के लेके आए जिसमें जज ये समझता है कि अगर मैं इंटरम इंजंक्शन दूंगा तो ये प्रेजुडिस होगा पब्लिक वर्क में। फॉर एग्जाम्पल एक सड़क बन रही है, आप उसको स्टे कराने आ जाते हैं, कोई एक डैम बन रहा है, ओरिएंट लाइन ट्रेन बन रही थी। अब इस पे काफी लोगों का ये भी पॉइंट था कि जब ओरिएंट लाइन ट्रेन के ऊपर स्टे दिया कोर्ट ने, तो वो जिस टाइम स्टे दिया तो वो फॉर एग्जाम्पल बन रही थी 2 बिलियन में, एंड बाय द टाइम स्टे जब खत्म होता है तो उसकी कॉस्ट जो है वो 8 बिलियन पे चली गई है, ठीक है। तो इंटरम इंजंक्शन इन सूरत हाल में देते हुए कोर्ट दे ही नहीं सकती बेसिकली, जो आर्टिकल 199(4) के अंदर लिखा हुआ है, being harmful to the public interest for state property or of impeding the assessment or collection of public revenues। जहां पे पब्लिक रेवेन्यूज की कलेक्शन का मामला है तो अब अगर आप रेट लेके जा सकते हैं तो हो सकता है कि जज आपसे यही 3 पॉइंट पूछ ले। अब आपने इनमें से निकलना पड़ेगा आपको कि जी ये जो मैं रेट लेके आया हूं, स्टे मांग रहा हूं मैं, इसका पब्लिक रेवेन्यूज के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और इट विल नॉट अफेक्ट द पब्लिक वर्क। तो इन 3 चीजों से भी आपने बेसिकली देखना है आपने। बट इसमें कोर्ट के पास ये पावर दी है कि कोर्ट फिर भी ये तीनों जरूरतें होते हुए भी स्टे दे सकती है, बट वो तब देगी जब उसको ऑर्डर करना पड़ेगा आफ्टर हियरिंग द प्रिस्क्राइब्ड लॉ ऑफिसर। मैं आगे पढ़ता हूं, द कोर्ट शैल नॉट मेक एन इंटरम ऑर्डर unless the prescribed law officer has been given notice of the application and he or any person authorized by him in that behalf has had an opportunity of being heard, and the court for reasons to be recorded in writing is satisfied that the interim order would not have such effect as aforesaid। तो कोर्ट जो है वो इंटरम ऑर्डर देते हुए इट विल हैव टू राइट एन एलेबोरेटिव ऑर्डर और उसमें वो लिखेगी कि ये तीनों चीजें मैं सेटिस्फाइड हूं कि इन तीनों चीजों पे इफेक्ट नहीं आ रहा, या उसके पास फिर एक ही हल है, would have the effect of suspending an order or proceeding which on the face of the record is without jurisdiction। अगर उसको लगता है कि बिल्कुल विदाउट जुरिस्डिक्शन है तो फिर वो इन 3 चीजें अगर हों भी तो तब भी वो इंटरम रिलीफ ग्रांट कर सकता है। तो और फिर मैं आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर वर्ड पर्सन, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि थोड़ा जल्दी करें वरना अभी काफी ज्यादा लेक्चर तो और था। बट 199 सब आर्टिकल 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें वर्ड पर्सन को डिफाइन किया गया। अब 199(1) आर्टिकल ए में देखेंगे ना कि डायरेक्शन कोर्ट पर्सन को दे सकती है। अब पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन सा बंदा आता है वो सब आर्टिकल 5 में दिया गया, बट मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये सब आर्टिकल 5 जो है ये पर्सन की डेफिनेशन को एलेबोरेट कर रही है। तो इवन जो 5 में चीजें लिखी हुई हैं इसके अलावा भी चीजें आती है। वो मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स पर्सन इंक्लूड्स लिखा हुआ है, पर्सन मीन्स नहीं लिखा हुआ। पर्सन मीन्स का मतलब ये होता है कि फिर यही वाले बंदे हैं जो इसके अंदर लिख दिए गए। पर्सन इंक्लूड्स का मतलब ये फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, ये वाले लोग तो हैं। और ये इन्होंने क्यों इसको किया कि यहां पे इन्होंने लिखा है कि पर्सन इंक्लूड्स बॉडी पॉलिटिक और कॉर्पोरेट एनी अथॉरिटी ऑफ और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें इन्होंने क्यों ये चीज की है, क्योंकि लोगों को आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 पढ़ने के बाद ये ना लगे कि पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल। तो सब आर्टिकल 5 में उसको थोड़ा सा फिर एलैबोरेट किया कि नहीं, इंडिविजुअल्स के साथ इंक्लूड करेगा बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके खिलाफ भी आप आ सकते हैं। और तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल जो नीचे लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल OGDCL के अगर हम खिलाफ केस ला रहे हैं तो अब OGDCL के MD ने खुद तो कोई गलत काम नहीं किया ना, वो तो नीचे किसी बंदे ने शायद किया वो, तो टेक्निकली हम OGDCL के अगेंस्ट ही आते हैं कि
आपके नीचे तो ये सारा काम हुआ है, ये बेसिकली विदाउट लॉफुल अथॉरिटी हुआ है, वरना वो कह सकते नहीं जिसने किया उसको रेट जारी करे, मुझे क्यों रेट जारी कर रहे हैं। और टेक्निकली 199(5) के अंदर उन्होंने एलेबोरेट किया बाय यूजिंग द वर्ड इंक्लूड इनटू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पर्सन। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी से जो मैंने कंक्लूड है, इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन। सर बहुत शुक्रिया हसीब, आपने बहुत डिटेल से लेक्चर डिलीवर किया है। कोई क्वेश्चंस किसी के पास हो काइंडली? मैं हसीब, आपने बहुत डिटेल, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, बहुत डिटेल है, तो क्वेश्चन कोई नहीं बनता जी। एक तो ये फरमा दीजिए क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी सोशरारी में सेल किया जा सकता है कि नहीं, और दूसरा ये फरमा दीजिए कि जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो लिखते हैं, लेकिन उनके साथ जो सब्सिडियरी लॉ है, जो सबऑर्डिनेट लॉ है, उसकी प्रोविजन भी गलती से लिख दी जाती है, जैसे रेड विद 561A CRPC। तो वुड इट बी राइट और नॉट? सर आई थिंक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं तो लिख भी दे तो फर्क नहीं, बट वो आप वाली बात से मुझे थोड़ा सा लगता है कि यू शुड रिमेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन दैट यू आर इन्वोकिंग आर्टिकल 199, बट जो आप बॉडी के अंदर लिख रहे हो फिर आप लिखोगे कि ये लॉ है बेसिकली जिसकी वजह से मैं ये इन्वोक कर रहा हूँ कि इस लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो मेरे ख्याल से आप बॉडी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, नॉट इन द टाइटल मेरे ख्याल से। बट मेरा जो एक अपना मैं ये करता हूँ, मैंने अपने लिए लिखा है, मुझे ये लगता है कि मेकिंग अ पिटीशन इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी, तो इट्स अ स्टोरी टेलिंग। तो मैं ये करता हूँ कि आई राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फैक्ट्स, क्योंकि बेसिकली आपने एक मुद्दा बनाना है, तो मेरा बड़ा आसान तरीका है कि डे 1 से स्टार्ट हुआ कि सर ये इस तरह हुआ, मैं एप्लीकेशन लेके गया, फिर इधर गया, ऐसे हुआ, यूं हुआ, और एंड में मैं आ जाता हूँ अपने जो मेरा फिर ऑर्डर हो गया, एंड देन इन द ग्राउंड्स में डाल देता हूँ कि क्यों मैं इस ऑर्डर को किन ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने लिए इजी रखा हुआ है कि मैं क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स पहले लिखता हूँ सारे, और उसके बाद फिर ग्राउंड्स के अंदर मैं उस ऑर्डर या उस एक्ट या प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करता हूँ, जो कि आसान भी है क्रोनोलॉजिकल, आपने जज के सामने भी खड़े होके टेक्निकली फैक्ट्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बताने हैं, तो इट मेक्स लाइफ इजी फॉर द जज ऑल्सो कि वो शुरू से पढ़े कि आप शुरू में कहाँ गए, फिर आपने क्या किया, या कहाँ से आपका जो है मसला वो स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे वो जाके एंड हुआ है। तो मतलब मैं इस तरह से कर लेता हूँ सर अपनी जब प्रोसीड, आपने मुझे कहा भी था ना, हाँ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज का बिल्कुल सेशोरारी में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये खाली कोर्ट्स की हद तक सेशोरारी नहीं है, ये बेसिकली कोई भी एक्ट है, कोई भी प्रोसीडिंग्स है, बेशक वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने किया है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज ने की हुई है, वो आप कर सकते हैं सब्जेक्ट टू वही कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर रेमेडीज। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज के अंदर जो ओम्बड्समैन हैं, बैंकिंग मोत्सिब हो गया, आपका टैक्स मोत्सिब हो गया, फेडरल ओम्बड्समैन हो गया, तो इस तरह आपकी और मेडिकल ट्राइब्यूनल आ गया है, मतलब बहुत से ट्राइब्यूनल्स लॉ ने भी बना दिए, स्पेशल लॉज ने भी बहुत ट्राइब्यूनल्स बनाए, उनके खिलाफ आप आ सकते हैं, पर वो ये है कि विदाउट जुरिस्डिक्शन है, पेटेंटली इलीगल है, उस पर डायरेक्टली आ सकते हैं, वरना आपको वही अपना ऑल्टरनेट रेमेडी, और जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन था एग्जॉस्शन ऑफ रेमेडी, ये एक डॉक्ट्राइन है कि आपने अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करके देन यू हैव टू कम टू द रेट जुरिस्डिक्शन। तो इसको कहते हैं, जज आपसे पूछेगा कि हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल योर रेमेडीज बिफोर कमिंग टू द हाई कोर्ट, तो इसके ऊपर जजमेंट है 2021 CLC 1748, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एग्जॉस्शन ऑफ रेमेडी हैज बीन डेल्ट इन डिटेल। सर बहुत शुक्रिया।